I don't know how to explain this, but a team who is playing very good football, they're dominating the positions, they're creating chances, and they already won a trophy this season, and yet they're struggling. They lost a match against a 12th or 13th position team in the La Ligas. Second in the league, 3 points behind their biggest rival, 4 goals down against Atletico in the Copa del Rey quarterfinal. So the real question is not, are Barcelona bad? The real question is, why is a team that plays good football falling when it matters the most? And why does this feel familiar? FC बार्सिलोना का मेन प्रॉब्लम किसी को भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि सपोर्टर्स भी सोच रहे हैं कि FC बार्सिलोना का जो मैनेजर है हांसी फ्लिक इज डूइंग प्रीटी ग्रेट. लास्ट सीजन डोमेस्टिक ट्रबल वो लोग जीते. ऑल दिस इज बिकॉज ऑफ हांसी फ्लिक. हांसी फ्लिक ने बहुत बढ़िया अपने प्लेयर्स को मैनेज किया, अपने प्लेयर्स से बहुत बढ़िया आउटकम निकाला, आउटपुट्स, रिजल्ट्स. बट द मेन प्रॉब्लम इज बार्सिलोना बीइंग वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्लब इन द यूरोपियन फुटबॉल हिस्ट्री आर करंटली फेसिंग अ स्ट्रेंज रियलिटी, स्ट्रेंज प्रॉब्लम, स्ट्रेंज स्ट्रगल. समझ में नहीं आता. बार्सिलोना लुक्स very good on the pitch, but gradually game by game the performance deteriorates. कुछ players अगर injured या फिर 1-2 मैचेस ना स्टार्ट करें तो hell heaven का डिफरेंस दिखता है. And this is where the problem actually gets started. कुछ महीने पहले तक भी बार्सिलोना looked unstoppable. अब लग रहा है कि नहीं यार, चैंपियंस लीग में भी कुछ नहीं होगा. बैकलाइन तो खत्म ही है ऑलमोस्ट. That guy can see, he can pick you up. Why would you? And by the way, the coordination is so bad that Jules Koundé finds himself keeping Forbes online. और अगर फ्रंट भी राफीना या फिर कोई स्टार्ट ना लगाए तो फ्रंट भी गया. लमीन से भी आप ओवर एक्सपेक्ट करते हो कभी कभार, इसीलिए पेनल्टी भी मिस हो गया बंदे से. इफ यू गिव लॉट ऑफ प्रेशर टू अ टीनेज बॉय हु इज जस्ट 18, सो ये हो सकता है. इट्स नॉर्मल, प्रीटी नॉर्मल. डोंट हाइप दैट थिंग. जब हांसी फ्लिक को साइन किया गया एज अ मैनेजर, हिज इंपैक्ट वाज वेरी इंस्टेंट. आके ही सब कुछ बदल दिया. गेम्स को अपने हिसाब से रन कर रहा था, प्लेयर्स को ट्रांसफॉर्म कर दिया. हाई इंटेंसिटी का फुटबॉल दिखा रहे हैं हम लोगों को. रूथलेस प्रेसिंग हो गया. ऊपर से क्लियर आइडेंटिटी था, एक बिलीफ था कि हाँ हम लोग कर सकते हैं. They even reached the semi-finals of Champions League only to be knocked out by Inter Milan. But despite that, the season felt like beginning of something special, something great. को लास्ट सीजन को काउंट करते ही सब लोग हाई होप्स लेके बार्सा के ऊपर बैठे थे कि दिस सीजन दे गोना बी बेटर देन द लास्ट सीजन. बट बार्सिलोना ने पहले ही हक दिया, इनको को बाहर निकाल दिया. बट फिर भी जैसे जैसे दिस सीजन ऑल्सो दे स्टार्टेड रियली वेल. Somehow they lifted Super Copa de España, defeating Real Madrid 3-2. फिर भी आप ये नहीं कह सकते इस टीम को देख के कि you know this team is gonna win everything. Why the Barcelona is facing the same kind of problems again and again? अगर 2-3 बंदे पेद्री, रफीना और फ्रेंकी डी जोंग ना रहे तो ये बार्सा खत्म है. If you remove Pedri from Barca, there's nothing. Pedri is the heart of Barcelona. Hansi Flick believed in a structured discipline and intensity. His preferred system is 4-3-3 attack or 4-2-3-1. This is the same ideology that won him sextuple with Bayern Munich 2019-20 season. But Bayern Munich, the team was built for chaos. Prime Lewandowski was there, Gnabry, Koeman stretching the defenses, Muller exploiting space, Thiago, फिर Kimmich, क्या कंट्रोल करने वाला, एकदम कंट्रोल मोमेंटम को ब्रेक करने वाला बंदे. And the team could even press relentlessly, recover instantly and kill opponents in transition. Barcelona, they're trying to run the same system without the same physical tools, and that's where the fatigue, that's where the young squad is having the problem, is getting the problem. हांसी फ्लिक को कुछ डिफरेंट सोचना चाहिए इन सब के बारे में, क्योंकि रिजल्ट्स तो आपको दिख रहा है ना. सो ऑनेस्टली बार्सिलोना का मैनेजमेंट एंड हांसी फ्लिक को सोचना चाहिए. इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट अटैक आता है, क्योंकि अगर बार्सिलोना के डिफेंसिव स्ट्रक्चर की बात करें तो वो कई हद तक पनिश होते हैं डिफेंसिवली. ज्यादातर वो लोग अटैकिंग एक स्ट्रक्चर या फिर फॉर्मेशन या फिर एक गेम खेलना कोशिश करते हैं. हम लोग डिफेंसिव अगर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, विल मेक इट अप विद आवर अटैक. अगर ओपोनेंट्स हमें 2 गोल दे रहे हैं तो हम लोग 3-4 देंगे और हम लोग मैच को सिक्योर करेंगे. लेवेंडोस्की 37 years old, मे बी ही इज एलीट लेवल ऑफ अ फुटबॉलर, बट ही इज वेरी ओल्ड. एंड इस सीजन के बाद उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहिए. फॉर द लव ऑफ गॉड, पीपल शुड अंडरस्टैंड, मैनेजमेंट, द क्लब शुड अंडरस्टैंड कि एक सर्टेन लेवल के बाद प्लेयर को नहीं खिलवाना चाहिए ऐसे बड़े स्टेजेस में. पर इसका मतलब ये भी नहीं कि फेरान टोरेस से हम लोग सब कुछ करवा दे, क्योंकि फेरान टोरेस से भी कुछ हो नहीं रहा. वैसे 2-3 गोल देता है बंदा, उसके बाद पूरे मैच में ये कुछ ज्यादा करता है नहीं, ढंग से कोई परफॉर्म कर नहीं पाता बड़े मैच में. एक बंदा परफॉर्म कर रहा है, लमीन यमाल, जो कि बच्चा है, जिसके पास बहुत टैलेंट है, बहुत अच्छे से क्रिएट कर सकता है. बट प्रॉब्लम आता है फाइनल थर्ड पे, जहाँ पे लमीन ने अगर क्रिएट कर भी दिया, फिनिश नहीं कर पाता. कोई फॉरवर्ड फिनिश नहीं कर पा रहे. हाँ, रफीना इज देयर इन हिज प्राइम, बट ही इज काइंड ऑफ इंजर्ड. उसके बदले में अगर आप रैशफोर्ड के खिलाओ तो हाँ, एक डायरेक्शन मिल रहा है हम लोग. अगर वो चांसेस क्रिएट करके लमीन दे भी रहा है रैशफोर्ड के लिए, अगर 5 चांसेस क्रिएट किए जा रहे हैं, 3 या 4 गोल करने की कोशिश कर रहा है रैशफोर्ड. परफॉर्मेंस इज गुड बट नॉट अप टू द मार्क. बार्सिलोना का कभी भी
चांसेस क्रिएट करने वाला सिस्टम कभी प्रॉब्लम था नहीं। दे लैक एफिशिएंसी, उसको कन्वर्ट करने वाले बंदे नहीं है। एलीट लेवल का फॉरवर्ड आपके पास रहेगा, सेंटर फॉरवर्ड, तब ये और बढ़ जाता है। सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट या फिर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी कह लो जो बार्सा के पास है, जो जिसके लिए बार्सा आउटप्ले कर पाता है ओपोनेंट्स को, इस मिडफील्ड, वो जो डेप्थ मिडफील्ड में है। द पेद्री एंड डी जोंग डुओ, आर्ग्यूबली द बेस्ट मिडफील्डर डुओ इन द यूरोप, इन द होल वर्ल्ड, फुटबॉलिंग वर्ल्ड में सबसे बेस्ट डुओ है पेद्री एंड डी जोंग। बट देयर इज अ प्रॉब्लम कि पेद्री के जगह कोई उसके जितना अच्छा बंदा है नहीं स्क्वाड में, उसको रिप्लेस करने वाला, या फिर उस हद तक उसको रिप्लेस नहीं करना होगा, पर उसके लेवल का कोई बंदा है नहीं। क्योंकि दिक्कत का आता है अगर पेद्री या डी जोंग कोई एक ऑफ है, बेसिकली अगर पेद्री अगर ऑफ है तो आप कोई भी गेम उठा के देख लो जो कि पेद्री ऑफ था गेम में, उतना अच्छा परफॉर्म कर ही नहीं पाया बार्सा ने उतना अच्छा परफॉर्म किया ही नहीं। नॉट देयर फॉरवर्ड्स, नॉट देयर डिफेंस, कोई परफॉर्म नहीं कर पाया क्योंकि ये दो बंदे बहुत हेल्प करते हैं फॉरवर्ड में भी, अटैक में भी, डिफेंस में भी। पेद्री अगर नहीं रहेगा तो एवरीथिंग गेट कोलैप्स्ड। एंड सेम फॉर डी जोंग is also similarly important. Fermin का क्या है? Fermin and Casado are still struggling. Fermin is inconsistent and Casado का game time ज़्यादा मिला नहीं उसको, and उतना ज़्यादा वो डिक्टेट नहीं कर पाता, रन नहीं कर पाता गेम। रही बात करें अगर डैनी ओल्मो की, डैनी ओल्मो इज नीदर डोमिनेंट नॉर यूजलेस, जस्ट ही इज अ एवरेज काइंड ऑफ अ प्लेयर। कभी कभार वो अच्छा परफॉर्म कर देता है, कभी कभार वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, बट यू कैन डिपेंड ऑन डैनी ओल्मो। And Barcelona's midfield is the bridge between defense and attack. When it breaks, the whole team disconnects. Flick plays a very defensive, high defensive line that demands pace, position, experience, and Barcelona have none consistently. Inigo Martinez के डिपार्चर के बाद लीडरशिप, एक जो लीडरशिप था वो बहुत वीक हो गया, एंड अराउहो इज नॉट द राइट काइंड ऑफ अ लीडर टू गाइड द होल स्क्वाड, स्पेशली द बैक लाइन को। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, एरिक गार्सिया इज़ नॉट अ नेचुरल सेंटर बैक, कुबार्सी इज़ प्रॉमिसिंग बट स्टिल अ किड, उसको गाइडेंस की ज़रूरत है। एंड इस सीज़न पे अगर इनिगो रहता तो शायद से कुबार्सी और बेटर परफॉर्म कर पाता लाइक लास्ट सीजन। फुल बैक पुश हाई बट रिकवरी रन्स आर वेरी लेट, एंड ऑनेस्टली इस पे उन लोगों का गलती है नहीं, क्योंकि हाई लाइन अगर बना के रखोगे, जब ट्रांजिशन पीरियड पे आपको फॉल बैक करना पड़ेगा तो कभी कभार, क्योंकि ओपोनेंट्स के बंदे भी, ओपोनेंट के स्ट्राइकर भी, वो लोग भी तो भागने पे वो लोगों ने भी ट्रेनिंग किया है ना, वो लोग भी अच्छे खासे भाग सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप ही सिर्फ भागोगे। सो नॉट एवरीवन इज डेविस जो इतना अच्छा, मतलब पागलों की तरह भाग सकता है, ऐसा नहीं है। इफ़ एम्बापे इज रनिंग, एम्बापे अगर भाग रहा है आपके डिफेंस लाइन को, ठीक है, गोल करने के लिए, तो आप नेचुरली कैचअप करने में बहुत दिक्कत होगा, आपको तकलीफ जरूर होगा। सो बार्सिलोना बेसिकली प्लेइंग विद एन ओपन डिफेंस, एंड दैट्स वेयर द होल मेस्ड अप पार्ट इज, एंड नाउ एवरी मैनेजर नोज दिस एंड दे आर प्लेइंग अकॉर्डिंग टू द थिंग। दे आर एक्सपोजिंग द डिफेंस, स्ट्रेच करवा रहा है स्पेस को, खुल्लम खुल्ला कैसे भी करके ब्लॉक करो, डिफेंस करो, फिर एक लॉन्ग बॉल डालो, मिल जाएगा तो भागो, भाग के कट कुट करके कैसे भी करके थोड़ा बहुत ड्रिबल करो, या फिर स्पेस तो मिल ही जा रहा है। अगर आपके सेंटर बैक्स ही है, अगर बैक लाइन पे सिर्फ आपके सेंटर बैक्स है तो आपको 3-4 बंदे ही होंगे, हार्डली 3 बंदे होंगे हार्डली, और आप प्रेस कर पा रहे हो तो ओपन है, बहुत स्पेसेस मिल रहा है आपको, तो एक्सप्लॉइट कर पा रहे हो, एक्सप्लॉइट करने पे आपको बहुत आसान हो रहा है। तो दिस इज वेयर द होल प्रॉब्लम इज। ओपोनेंट सिंपल स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं, ओपोनेंट्स के मैनेजर ने कह दिया है कि तुम लोग पीछे लो ब्लॉक करके रहना, ब्लॉक सेंट्रल चैनल्स, पेद्री को वर्टिकल पासेस या फिर डायगोनल पासेस या फिर कोई पास चैनल या फिर कोई एंगल से निकालने मत देना पास को, पेद्री को जोनली ब्लॉक करो। ऐसा नहीं है पेद्री को चढ़ जाओ, पेद्री गॉट दैट पावर टू बेंड यू। पेद्री आपको कैसे भी काट के निकल जाएगा या फिर 1-2 खेल के आपको नचवा के चला जाएगा, तो आप उसको प्रेस मत करो, आप जोनली डिफेंड करो। दिस इज व्हाट हैपनिंग, एंड काउंटर पे थ्रू बॉल वाइड स्पेसेस एरियाज पे, एंड देयर आर लॉट ऑफ चांसेस, लॉट ऑफ स्पेसेस आउट देयर, कोई डिफेंड करने वाला बंदा है नहीं, दे फॉलिंग बैक। ऊपर से नीचे उतरने में भी तो समय लगता है ना, टाइम लगता है, तो बार्सिलोना कांट ब्रेक देम डाउन, एंड द ओल्ड आइडिया इज इफ दे स्कोर 4 विल स्कोर 6, दैट्स नो लॉन्गर इज वर्किंग राइट नाउ। एंड ऑनेस्टली जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि एथलेटिको के अगेंस्ट हम लोग 4 गोल खाए तो क्या हो गया, वो जो लुइस एनरिके ने कहा था वो वाला बात हम लोग कर देंगे कि इफ
दे स्कोर्ड 4 विल स्कोर 6, ऐसा कुछ कर देंगे, ठीक है ना, सेकेंड लेग पे जाके। ऐसा नहीं होने वाला, देख लेना, ऐसा नहीं होगा। एंड दे विल सफर अ लॉट, दैट्स नो लॉन्गर वर्किंग एंड दैट विल नॉट वर्क। ये सेकेंड लेग में प्रूव हो जाएगा। कोपा देल रे के क्वार्टर फाइनल पे अगेंस्ट एथलेटिको मद्रिद, बार्सा के पास रफीना नहीं था, वो इंजर्ड था, रैशफोर्ड भी इंजर्ड था, एंड डैनी ओल्मो was forced to play a left wing position. डैनी ओल्मो ड्रिफ्ट करके सेंट्रली आ रहा था, left flank was kind of empty and Atletico exploited it, overloaded crosses, goals. That match wasn't just a bad day, it exposed structural failures. कभी कभार आपके इन सब चीज़ों की वजह से बहुत सारे टीमों को ये दिख जाता है कि where you are actually struggling, and वो आपके वीक पॉइंट को समझ लेते हैं एंड समझ के उसके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजीज बनाते हैं एंड आपको चेकमेट करने का बहुत हद तक कोशिश करते हैं। दैट्स व्हाट हैपेंड विद जिरोना ऑल्सो, वी नेवर गॉट कनेक्टेड, वी लॉस्ट द कनेक्शन। एंड अगर ये कनेक्शन जल्दी बिल्ड ना हो तो बहुत दिक्कत होगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है। चैम्पियंस लीग के बड़े बड़े गेम्स सामने आने वाले हैं। कोपा दिल तो फिर भी ठीक है, चैम्पियंस लीग अगर कोई सोच लगा के बैठा हुआ, सपना लगा के बैठा हुआ ना कि हाँ चैम्पियन लीग तो अभी भी है, अभी भी हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अगर आपका मोमेंटम ब्रेक हो जाएगा, अगर आपके प्लेयर्स के कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा तो दिक्कत है, इन द लॉन्ग रन बहुत दिक्कत है। और शायद से हांसी फ्लिक को बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब देने पड़े, बोर्ड को एटलीस्ट, बोर्ड को भी और प्लेयर्स को भी और फैंस को भी, क्योंकि फैंस उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं।